ओके। पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड वेरियस एड्रेसिंग मोड। ओके। एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग the program for addition, subtraction, multiplication and division. Okay. Now here you need a software for this experiment is idsim simulator. Okay, without this you cannot do the practical, right? So that's why with idsim simulator we can do this practical. I hope you already installed in your PC or laptop. Now we are going to start the first practical. Okay, now here first practical we are going to start with a 8-bit addition. Okay, we are going to see immediate addressing mode. Okay, now I am just copying this experiment. Okay, and we know our simulator. Okay, in that simulator I am just pasting it. Okay, so here editor is present. I hope now you are very much familiar with the editor. Okay, ये एडिटर में आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर हमें यहाँ प्रोग्राम टाइप करना है. सो दैट्स वाई आई एम जस्ट पेस्टिंग द प्रोग्राम. ओके, हियर org 0000h. okay, semicolon is used for comments. Okay, means whatever the statement, that statement is this one, org 440h. okay, but now this statement is called as an assembler directives. Okay, org is one of the assembler directives that I mentioned in the assembler directives lecture. Okay, and 0000 is the address where our program is get stored. Now at this moment as I click over the editor, immediately the code memory will be in presentable manner. Here you can able to see the address 0000. Okay, so with this address now it is 00, but as we go for the running or compilation of this program, you will able to see here the mnemonics of this program. Okay, तो एक एक करके मैं अभी यहाँ पर आपको बात बताते जा रहा हूँ. पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है हमने move a,#20. ओके, तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का पर्पज़ है कि भाई हम 20 यह डाटा एक्यूमुलेटर में पास कर रहे हैं. सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ a विल बिकम्स 20h. Second line is telling about the add a,#10h. Okay, this line is telling you here we are going to add. Okay, add is the instruction. It is used for addition of two number. This instruction will works in total immediate register, direct as well as indirect addressing mode point of view. So out of that, here we have used immediate addressing mode for additions point of view. Add a,#10. The purpose of the hash is to indicate immediate data. Okay, so that's why 10h is the second number and 20h is the first number. So first number is held by accumulator and second number is passed at the immediate place. So that's why the value of a and 10h both are get added, and you will get result in accumulator. Once the result is getting in accumulator, we will pass that result in a memory address 40h. Now 40h is residing in a RAM. Okay, so 40h. okay, यहाँ पर जो 40h यहाँ पर जो बताया है यह एड्रेस है मेमोरी का, रैम का एड्रेस है. तो ये एड्रेस में यह एक्यूमुलेटर का डाटा वहाँ पर जाएगा. ओके, सो यहाँ रिमेंबर यह इंटरनल मेमोरी का एड्रेस है. यहाँ पर आपको ये डाटा वहाँ पर स्टोर्ड होगा. कैसे होगा स्टोर्ड ये बात बताता हूँ. लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर एंड. ओके, इट इज़ वन ऑफ द असेंबलर डायरेक्टिव. इट इज़ यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ असेंबलर. जो असेंबलर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, तो वह असेंबलर को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है. ओके, चलिए हम हमारे सिमुलेटर पे चलते हैं. यहाँ पर हम हमारा प्रोग्राम पहले सेव कर देते हैं. सेव करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ex1. ओके, सो दैट्स वाई ex1.1 यानी हम यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट में पहला पॉइंट यहाँ पर देखने जा रहे हैं. सो दैट्स वाई यहाँ लिखा है
ex1.1 और सेव कर दो। उसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहेगा वह आएगा आपको .a या .asm करके रहेगा। रिमेंबर, जब भी हम प्रोग्राम सेव करते हैं तो ये असेंबलर है, ये असेंबलर हमारा प्रोग्राम इन असेंबली लेवल लैंग्वेज में स्टोर करता है। तो इस वजह से इस जो फाइल का, जो हम फाइल यहाँ पर सेव करेंगे, उस फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .asm यानी .a और .asm रहता है। ओके, मैं अभी यहाँ पर सेव कर देता हूँ। राइट, सेव होने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पर उसे असेंबलर को पास कर देता हूँ। असेंबल सोर्स कोड, यानी ये असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने पास किया है वह मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको असेंबलर में ये प्रोग्राम इस तरह, इस फैशन में दिखाई देगा। ओके, आपको इस तरह ऑब्जर्वेबल होगा। ओके, मैंने पहले ही कहा org000h ये असेंबलर डायरेक्टिव्स है। ओके, तो ये कहीं स्टोर या एग्जीक्यूट भी नहीं होता है, इट जस्ट गिव द डायरेक्शन टू द असेंबलर। लेकिन यहाँ पर जो पहला जो स्टेटमेंट है move a,#20h, यह 0000h इस एड्रेस के ऊपर वह रखा गया है। तो ये आप यहाँ पर कोड मेमोरी में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ ऑब्जर्व करते समय आपको दिखाई देगा 74 इज अ कोड ऑफ मूव ए। ओके, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव ए, ये मूव ए नाम की जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे लिए पता है, ये आपको ये पता है कि भाई एम क्या है, ओ क्या है, वी क्या है, ए क्या है, बट माइक्रो कंट्रोलर डजंट नो। सो दैट्स व्हाई द माइक्रो कंट्रोलर विल कन्वर्ट दिस असेंबलर assembly level language, means this letter English letter program into the machine level language. So that's why that machine level language program is in the ones and zeros form. So that's why these ones and zeros are stored in a hexadecimal form. So that's why 74 is coming. तो 74 कहाँ से आया, समझ में आया क्या आपको? तो 74 आया है, ये असेंबलर डायरेक्टिव्स ने, असेंबलर ने क्या किया, उसे इस प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद MOV का जो हेक्स कोड है वह हेक्स कोड यहाँ पर आया है 74। उसी तरह उसके बाजू में आया है 20, तो 20 जो है वो हमने ही पास किया है। उसके बाद आया है ऐड ए, तो ऐड ए का कोड है 24। उसके बाद आया है 10, उसके बाद आया है MOV 40। तो MOV 40 में ओके, यहाँ पर MOV और A यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ F5 नाम का कोड है और 40 जो है वह 40 यहाँ पर बता रहा है एड्रेस वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर अवर डाटा। ओके, यहाँ पर आपको ORG और एंड का कोड नहीं दिखाई देगा, ये आपका कोड मेमोरी का इंटरनल डाटा है, ये आपका मेमोरी में जो प्रोग्राम है वो इस तरह है। अच्छा, कोई किसी को डाउट, भाई इसको किसी को समझ में नहीं आया ये बात, ध्यान में रहो, और किसी को डाउट रहा तो वो रेस करना मुझे। अभी मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको एक एक पहले बताता हूँ। भाई पहली इंस्ट्रक्शन है मूव a,20, लेकिन a यानी ACC में देखो अभी फिलहाल क्या है, ACC में फिलहाल है 000। ओके, बाद में हम यहाँ पर जैसे ही स्टेप का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको 20 दिखाई देगा। सी, मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसे प्रेस किया तो वहाँ पर क्या आया 20, और 20 जैसे आया तो उसके नीचे PSW में वैल्यू चेंज हो गई 01 इसलिए हुआ क्योंकि कहा यहाँ पर A इज सेंसिटिव। रिमेंबर, in terms of microcontroller A register is very much sensitive to flag register, means इस रजिस्टर में जो भी डाटा रहेगा वह डाटा फ्लैग रजिस्टर में इमीडिएटली चेकआउट किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डाटा में कितने जीरोस है, कितने वंस है। तो जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ये सारे वहाँ एनेबल होते हैं और जो वहाँ प्रेजेंटेबल मैनर में डाटा आता है वो प्रेजेंटेबल मैनर में डाटा आपके सामने अवेलेबल होता है, यानी इस वजह से आपको आया 01। ओके, चलिए अभी जो रेड कलर था वो रेड कलर में यहाँ पर 0000 था, वह आ गया 0002 पे। क्यों?
क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है, कहाँ है प्रोग्राम काउंटर, देखिए इधर पीसी, मैंने माउस का कर्सर वहां पर लेकर गया, उसे मूव आउट कर रहा हूं तो वहां पर क्या आया है 0x0002। इस वजह से वहां रेड कलर का मार्क है, यानी पीसी फिलहाल कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है 0002 के ऊपर, यानी ऐड ए कॉमा #10 ये नाम की इंस्ट्रक्शन उसे एग्जीक्यूट करनी है। क्या फंडामेंटल है प्रोग्राम काउंटर का, मैंने क्या बताया, प्रोग्राम काउंटर इज यूज फॉर फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आकर बैठ गया और उसको अभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर को बताना है। अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन दबाओगे स्टेप का फिर से बटन दबाओगे तो ये 20 जो एक्यूमुलेटर में है और 10 जो यहाँ आपने इमीडिएट डाटा दिया है, इन दोनों में यहाँ पर एडिशन हो जाएगी और दोनों में एडिशन होकर रिजल्ट आएगा ए में सी। मैं आपको बता रहा हूं स्टेप का बटन प्रेस करके सी। देखिए इज इट ऑब्जर्वेबल। सो अभी रेड का जो मार्क था 0002 के ऊपर था, वह आ गया 0004 के ऊपर। आप पीसी की वैल्यू भी चेक कर सकते हो और यहाँ पर एक्यूमुलेटर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी वैल्यू आई है 30। गॉट इट। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो 40 के ऊपर हमारा डाटा आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर कोड मेमोरी को यहाँ क्लिक करता हूँ, अभी 40 देखिए यहाँ पर 40 में फिलहाल क्या वैल्यू है, आप अगर रीड कर पा रहे होगे तो मुझे वहाँ आप बता सकते हो, वहाँ पर 00 वैल्यू है। लेकिन अभी तक मैंने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पर अभी ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, यानी मूव 40h, A यह इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। तो क्या होगा, ए रजिस्टर में है 30h, वह कहा जाएगा इस 40h में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टेप का बटन प्रेस करता हूं, चेकआउट। देखो भला जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ, ए रजिस्टर में तो 30 है ही, ए रजिस्टर का डाटा इरेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा का इरेजिंग कब होता है, जब आप उसको खुद इरेज करने जाओगे या मॉडिफाई करने जाओगे। ए एज अ सोर्स था, इस वजह से ए की वैल्यू एज इट इज है, 40 एज अ डेस्टिनेशन था, 40h यहाँ मेमोरी एड्रेस था, इस वजह से मेमोरी एड्रेस में ए की जो वैल्यू है 30 यहाँ आ गया। अभी यहाँ पर रेड मार्क कहीं पर नहीं है, क्यों, क्योंकि एंड नाम की जो असेंबलर डायरेक्टिव है ये असेंबलर को टर्मिनेट करेगा। ये हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट तो हो ही रहा है, लेकिन असेंबलर को टर्मिनेट करने का काम इसका है, यानी इस द्वारा यहाँ पर जैसे ही मैं स्टेप का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे कोई एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के पास नई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है बात। ओके, तो चलो यहाँ पर इस तरह ये प्रोग्राम यहाँ पर मैं रीसेट करता हूँ। ओके, रीसेट अगर किया तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा और आप इस तरह उसे ऑब्जर्व कर पाओगे। अच्छा, कोई डाउट भी, किसी को अगर डाउट रहा इस तरह का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में, आई होप यू कैन कॉन्टेक्ट मी वेरी इजीली, राइट। चलो अभी सेकंड प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर। ओके, अभी यहाँ पहला ही एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट में सेकंड प्रोग्राम है, राइट। अभी ये सेकंड प्रोग्राम है, यहाँ पर यूज ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, फिर से मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, राइट। कॉपी करने के बाद हमारे असेंबलर में चलते हैं। असेंबलर में अर्लियर प्रोग्राम था, अभी मैं यहाँ पर न्यू ले लेता हूँ। ओके, तो वो क्या बोलेगा, मुझे पहला प्रोग्राम आपको सेव कर लेना है क्या, यस बोलिए। अगर आप यस बोलेंगे तो वो सेव हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ नई फाइल, यहाँ पर आपको फाइल एग्जिस्ट और राइट यस, यस बोलिए। ओके, वो निकल जाएगा पहला प्रोग्राम। और अभी यहाँ पर मैं दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी कॉपी करके लाया हूँ, राइट। अभी इस प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पर org 0000h लिखा है। आई होप नाउ यू आर वेरी फेमिलियर विद, बिकॉज इट इज यूज फॉर स्टार्टिंग द असेंबलर डायरेक्टिव्स। ओके, और एंड नाम का जो प्रोग्राम है ये यूज होता है टर्मिनेशन ऑफ असेंबलर, राइट। ध्यान में रखना, भूलना नहीं, बार बार बताने की आई होप जरूरत नहीं रहेगा।
बाद में ये यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा हैश 20। ओके 20 यह डाटा एक्यूमुलेटर में पास किया, इस वजह से ए की वैल्यू हो जाएगी 20। सेकंड इंस्ट्रक्शन है मूव बी कॉमा हैश 10। ओके यानी ए और बी में आपको डाटा रखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू थी 20, बी की वैल्यू है यहाँ पर 10h। ओके ए और बी को अपने को ऐड करना है, इस वजह से रजिस्टर की एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर चूज किए हैं, उसका नाम है ऐड ए कॉमा बी। ओके तो ऐड ए कॉमा बी इस नाम की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी और आपको एडिशन देगी इस तरह a इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी क्या होगा a और b का डाटा ऐड होगा और आपको a में रिजल्ट आएगा। इसके बाद मूव 40h कॉमा ए, यानी a का डाटा फिर से 40h में स्टोर होगा। ओके चलिए फिर से यहां पर जाते हैं, यहां पर असेंबलर का बटन प्रेस करते हैं। देखो क्या क्या कर रहा हूं मैं, प्रोसीजर प्रोग्राम लाया कॉपी करके, या आप खुद टाइप करो, टाइप किया तो आपको कोई यहाँ पर हर्ज नहीं है। ओके टाइप करोगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली दिस असेंबलर, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू टाइप इट। सो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लाया, इसे सेव किया। ओके सेव कर देता हूँ। सेव के लिए मैं यहाँ पर इसका नाम नंबर चेंज कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1.2, राइट? सो दैट्स व्हाई उसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं असेंबलर प्रेस कर देता हूँ, इमीडिएटली यहाँ पर प्रोग्राम आ जाएगा। देखिए प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम आ गया, यहाँ पर नया कोड रहेगा। ओके नए वैल्यू रहेंगे। ओके उसी तरह यहाँ पर आपको डाटा एक एक करके समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, बी रजिस्टर में है वैल्यू 0, ए रजिस्टर में वैल्यू है 0, PSW में वैल्यू है 0, लेकिन हम यहाँ पर वह एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। पीसी में भी देख लो भाई, यहाँ पर वैल्यू है 0। अगर मैं स्टेप का बटन प्रेस करता हूँ तो इमीडिएटली क्या होगा, पीसी की वैल्यू देखो चेंज हो गई 0002, एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज हो गई 20 और यहाँ पर PSW की वैल्यू हो गई 01, राइट? सिमिलरली मैं सेकंडली उसे प्रेस करता हूँ। देखिए बी रजिस्टर में आ गया 10, ए रजिस्टर में है 20 और पीसी चला गया 5 के ऊपर, राइट? अब यहाँ पर इन दोनों की एडिशन कैरी आउट करनी है। रिजल्ट कहाँ आएगा, ए रजिस्टर में। सो दैट्स व्हाई प्रेस द स्टेप बटन, you can able to see a is equal to 30 because a is equal to a plus b होगा, 20 plus 10 यानी टोटल होगा 30 यह एक्यूमुलेटर में आएगा। अब एक्यूमुलेटर का डाटा मैं प्रोग्राम मेमोरी के डाटा मेमोरी में उसे 40h में स्टोर करने जा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई अभी हमारा फिलहाल प्रीवियस डाटा 30 है, यहाँ पर ऑब्जर्वेबल हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर डाटा वो नहीं रहना चाहिए तो मैं यहाँ पर वो डाटा इरेज कर देता हूँ। ओके सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर वो डाटा को यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ओके यहाँ पर 0 रख देता हूँ। देखिए 0 आया कि नहीं, ओके गॉट इट। अब यहाँ पर डाटा मेमोरी को फिर से यहाँ पर क्लिक किया, देखिए फिर से वहां पर 00 है ऑब्जर्वेबल। कोई डाउट भी किसी को? अब यहाँ पर स्टेप का बटन प्रेस करो, यानी ए की वैल्यू वहां 40h में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आ गया वैल्यू 30 बराबर। ओके दिस इज अ प्रोग्राम। ओके दिस इज अ सेकंड प्रोग्राम। ओके सो आई होप you got the understanding of this second program. Now I just press reset. As I press the reset, the program get restarted, right? So this is about the second program. चलो immediately यहाँ पर चलता हूँ थर्ड प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पर यूज ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यहाँ पर देखते हैं। अगेन यहाँ पर मैं सेम डाटा ले रहा हूँ, दोनों का एडिशन यहाँ पर करना है। ओके तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि यहाँ असेंबलर डायरेक्टिव्स में यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसे वहां लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम दो मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं। पहला लेते हैं 30H और दूसरा लेते हैं 31H। ओके यहाँ 30H और 31H इस तरह लेते हैं। एक मिनट। हाँ सर, हेलो हेलो
ओके हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ 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 सर, भेजिए भेजिए। ओके तो 30H और 31H यह दो एड्रेस है। यह एड्रेसेस हम इस पर्टिकुलर डेटा मेमोरी से लेंगे। ओके तो ये डेटा मेमोरी है। तो यहाँ डेटा मेमोरी में 30 और 31H में फिलहाल कोई डाटा नहीं है। 0000 आपको दिखाई देंगे। अभी मैं यह इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के द्वारा 20H यह डाटा है, यह इमीडिएट डाटा है, यह डाटा 30H इस एड्रेस के ऊपर कॉपी होगा। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली 31H यहाँ पर एड्रेस है। देखो एड्रेस यहाँ पर डिफाइन किया जाता है बगैर हैश के। ओके सो दैट्स वाई यहाँ 31H यहाँ पर एड्रेस है और #10 यहाँ पर डाटा है। डाटा हैश के द्वारा बताया जाता है, एड्रेस बिना हैश के बताया जाता है, याद रखना। ओके तो अब मैं यहाँ पर #10H यहाँ पर यह डाटा इस एड्रेस में पास कर रहा हूँ। तो 31H में मेमोरी में डाटा आ जाएगा 10H। गॉट इट। अब मैं यहाँ पर थर्ड इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, मूव A,30H। इससे क्या होगा, 30H का डाटा A में आ जाएगा, यानी 30H में क्या था 20, वह डाटा कहाँ आ जाएगा A में। सिमिलरली एड A,31H मध्ये ठेवून घे विजू, या इथे मधल्या याच्यात ठेवून घे टेबलावर। ओके एड A,31H यानी A का डाटा 31 इस एड्रेस में जो डाटा है उससे ऐड होगा और ऐड होने के बाद वो रिजल्ट आएगा A में, और A में जो रिजल्ट है वो हम फिर से 40H में स्टोर कर देंगे। ओके अब मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी करके हमारे असेंबलर में चलते हैं। ओके अब मैं यहाँ पर ये असेंबलर में यहाँ पर नया प्रोग्राम लेता हूँ, फिर से यहाँ पर नया प्रोग्राम पेस्ट कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं, इसका नाम रखता हूँ EX1.3। ओके अब यहाँ पर उसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद असेंबलर का बटन प्रेस करो। ओके असेंबलर का बटन के बाजू पीछे आ जाएगा स्टेप का बटन। देखो ध्यान में दो, वहां ऑब्जर्व करना, पहले ASSM दिखाई देता था, अब वो ASSM निकल जाएगा और यहाँ पर स्टेप आ जाएगा। आप डायरेक्टली रन का भी बटन प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वो रन का बटन अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अगर धीरे धीरे समझ में आएगा प्रोग्राम तो बेटर स्टिंग होगी, क्योंकि आपको अभी यहाँ पर नए हो, इस सॉफ्टवेयर को नए यहाँ पर पहली बार हैंडल कर रहे हो, आप पहली बार प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हो, इसलिए मैं ये स्टेप के द्वारा बता रहा हूँ। इस स्टेप से जब हम यहाँ पर स्टेप्स के द्वारा जाते हैं, इस मेथड को कहा जाता है डिबगिंग मेथड। ओके हाँ सर मिल गया मिल गया। जी 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 मैं थोड़ा लेक्चर ले रहा हूँ उसके बाद। हाँ 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 हाँ। ओके तो अभी यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर स्टेप का बटन प्रेस करते हैं, यानी ये चला जाता है सिंगल स्टेप मोड में, यानी यहाँ इसे कहा जाता है डिबगिंग मोड। इस डिबगिंग मोड में हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक एक करके एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते जाता है। इस वजह से यहाँ पर यह सिंगल स्टेपिंग मोड कहा जाता है। राइट अभी मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम मेमोरी अगर बताऊँ तो प्रोग्राम मेमोरी में देखो प्रोग्राम यहाँ बढ़ गया, पहले 6 ही तक था ना, अब वो B तक चला गया। ओके यहाँ लेंथ प्रोग्राम की जैसी बढ़ी, मेमोरी में भी उसकी मेमोरी में जो कोड है, कोड की भी लेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है। गॉट इट। अभी यहाँ पर हम प्रेस करते हैं डेटा। ओके अब यहाँ आप ऑब्जर्व करो, देखिए कैसा होता है डेटा। ओके तो सी मैं पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, मूव 30H, 20H। ओके कॉमा #20H। तो 20 यहाँ कहाँ आना चाहिए,
30H इस एड्रेस में। तो 30H इस एड्रेस में आपको देखो अभी फिलहाल क्या दिख रहा है 00, तो यहाँ इस एड्रेस में आ जाएगा 20। तो जैसे ही मैं स्टेप का बटन प्रेस करूँ तो देखो 20 वहां पर ऑब्जर्वेबल हो गया। ओके, सिमिलरली अभी 31 में आ जाएगा 10H। जैसे ही मैं यहाँ पर स्टेप का बटन प्रेस करूंगा तो वहां पर आपको दिखाई देगा 10। ओके, तो यह 20 और 10 की हमें एडिशन करनी है ऐड नाम वाले इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। लेकिन ऐड नाम वाले इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट है ए और कोई मेमोरी का एड्रेस, यानी एक प्लेस है मेमोरी को और एक प्लेस है रजिस्टर को। यहाँ इस तरह के इंस्ट्रक्शन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेमोरी का डाटा, कोई भी मेमोरी एड्रेस का डाटा, यानी जो 30 और 31 में आपने जो डाटा डिफाइन किया है उसी का डाटा ए में लेकर आते हैं। कैसे लाओगे, तो यहाँ पर मूव नाम की इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, वह आपको हेल्प करेगी। मूव ए कॉमा 30H, हैश नहीं लगाओगे, हैश लगाया तो क्या होगा, वो 30 ए में पास हो जाएगा। हैश नहीं लगाए यानी क्या होगा, 30 इस मेमोरी एड्रेस में जो डाटा है वह एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। गॉट इट? जैसा मैंने आपको वहाँ पहले बताया है, मेरे वीडियो देखे ना आपने, उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया है इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करते समय, राइट? जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देखो, वहाँ पर वो वीडियो वॉच करो, यानी आपको वहाँ थ्योरी में समझ में आ जाएगा। ओके, अभी जैसे ही यहाँ पर मैं ये स्टेप का बटन प्रेस करूंगा तो अभी फिलहाल ACC में डाटा 00 है। अभी मैं जैसे ही प्रेस करूं तो देखो वहां पर डाटा आ जाएगा 20। ओके, 20 डाटा आने के बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम काउंटर का कर्सर है वह आ गया 0008 के ऊपर। ओके, अभी यहाँ पर A और 31 इस मेमोरी का डाटा ऐड होगा, यानी A में है 20 और यहाँ 31H में है 10। ये दोनों की एडिशन होगी और रिजल्ट कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में। तो देखिए एक्यूमुलेटर में 30 ऑब्जर्वेबल हो गया। ओके, इस वजह से यहाँ पर आपका 31H का डाटा जो 10H था वह एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड हो गया। ओके, गेटिंग एवरीवन? ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है, ये जो 30 है जो एक्यूमुलेटर में है वह स्टोर करना है 40H में। ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगा सर मैं यहाँ से उसे निकाल लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जाके मेमोरी का एड्रेस प्रेस कर दो, वहाँ 00 रख दो भाई, आपको यहाँ आगे दिखाई देगा यहाँ 00। जैसे ही यहाँ 00 आया फिर बाद में स्टेप के बटन को प्रेस करना। स्टेप के बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वह 30 यहाँ 40H में कॉपी हो जाएगी और यहाँ प्रोग्राम आपका फिनिश। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, हाँ चलिए अभी आपको यहाँ पर 4th प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। यह भी एडिशन ऑफ 8-बिट नंबर है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को जो बता रहा हूँ वह है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ही यूज करेंगे, इसके अलावा ऑपरेशन में अलग इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होगी। ओके, तो चलो पहली 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके एज इट इज सिमिलर हैं, ओनली यहाँ पर सिमिलर बोले तो मैं यहाँ पर चेंज किए हैं, चेंज बोले तो यहाँ पर मैंने यहाँ 30 और 31 यह मेमोरी एड्रेस बताए हैं, राइट? सो दैट्स वाई यहाँ पर वह मेमोरी एड्रेस रहेगा। ओके, तो 30 और 31 में आपका ओके यह मेमोरी में आपको यहाँ पर डाटा पास करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर पहले वाली जो 2 इंस्ट्रक्शन है 30 और 31 का यह डाटा के लिए ये इंस्ट्रक्शन यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। गॉट इट? हाँ, तो 30 और 31 में 20 और 10 आ जाएगा। ओके, तो पहली 2 इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, ये मैंने जस्ट ऊपर से कॉपी किया क्योंकि कैसा कि मुझे यहाँ पर 30 और 31 में डाटा जरूरी है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये डाटा रखने के लिए मुझे यहाँ इस तरह यह पर्टिकुलर
एड्रेस में मुझे डाटा रखने के लिए मैंने यहाँ वह पहली वाली 2 इंस्ट्रक्शन यूज की। ओके, हाँ, अभी मैं यहाँ पर मूव R0,30 ओके ये इंस्ट्रक्शन को बताने जा रहा हूँ। ओके, देखिए इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है 30H। यहाँ पर आप यहाँ एड्रेस कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन मैं हैश के द्वारा उसे R0 में पास कर रहा हूँ, क्योंकि हैश लगाऊंगा तभी मैं R0 में उसे पास कर पाऊंगा। हैश के द्वारा 30 को कॉपी करना मुझे R0 में पॉसिबल है, और 30 यहाँ पर एड्रेस नहीं डाटा कंसीडर करके ही कॉपी हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई 30 मैंने R0 में कॉपी किया। उसी तरह 31 मैंने R1 में कॉपी किया, सो दैट्स वाई मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव R1, #31H। अच्छा, इन दोनों इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझ में आया? ये दोनों इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझ में आया? यानी आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मैं इजाज़त दे सकता हूँ। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे पूछ लेना। ओके, यहाँ 101% कन्फ्यूज होने के चांसेस रहते हैं स्टूडेंट के, तो इस वजह से मैंने यहाँ आपको यहाँ ये पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। ओके, चलिए, ये चारों अगर इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आगे। लेकिन अभी यहाँ पर फिर से एक बात यहाँ थोड़ी रिपीट करता हूँ। R0 में क्या वैल्यू है, R1 में क्या वैल्यू है, याद रखो। R0 में वैल्यू है 30H। ओके, R1 में क्या वैल्यू है, R1 में वैल्यू है 31H। ओके, R0 और R1 में है 30 और 31। ओके, अगर मैं यहाँ पर @R0, याद रखो @R0 अगर बोलता हूँ तो @R0 में वैल्यू कितनी आएगी, 20H, याद रखना। ओके, सिमिलरली @R1 में अगर मैं वैल्यू अगर देखता हूँ तो @R1 में वैल्यू कितनी आएगा। ओके, तो @R1 में वैल्यू आएगा मुझे 10H। ओके, इस तरह मुझे यहाँ वैल्यू आएगा, राइट। कोई डाउट भाई अभी किसी को? अगर डाउट रहा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी वेरी फ्रीली। सो दैट्स वाई @R0 में 20 है, @R1 में 10 है, ये यहाँ वैल्यू मैं एक्यूमुलेटर में पहले पास कर देता हूँ। सो दैट्स वाई @R0 को लेता हूँ, यानी इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मूव A, @R0। ओके, यानी क्या होगा, @R0 के द्वारा डाटा आएगा A रजिस्टर में, यानी A की वैल्यू हो जाएगी 20H। सिमिलरली मैं @R1 की वैल्यू ले रहा हूँ 10, वह वैल्यू यहाँ पर एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर रहा हूँ, उसके द्वारा यहाँ मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ ऐड A, @R1। @R1 में है 10, A में है 20, दोनों की एडिशन हो जाएगी, मुझे मिलेगा रिजल्ट 30H। वह 30H एक्यूमुलेटर में होल्ड किया जाएगा, वह डाटा मैं 40H में कॉपी करूँगा। इस तरह मेरा प्रोग्राम रहेगा। मैं ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ ये कॉपी करके यहाँ मेरे असेंबलर में लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है। ओके, तो मैं यहाँ नया प्रोग्राम ले लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए मैं यहाँ नो बोलता हूँ। नो, नया प्रोग्राम कॉपी करता हूँ। राइट, अब देखिए यहाँ मैं पहले डाटा मेमोरी में, देखिए प्रोग्राम मेमोरी में देखो कुछ भी नहीं है, डाटा मेमोरी में भी कुछ भी नहीं है। आपको अगर लग रहा होगा तो ये 30 भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पर 40 डाल देता हूँ और यहाँ 40 डाल के यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ 00। ओके, यहाँ पर 30 में भी ये वैल्यू यहाँ पर निकाल लेता हूँ, यानी आपको यहाँ पर मैं बिना जाए हुए ये वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ 31 में यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। ओके, वह भी वैल्यू यहाँ पर 00 कर देता हूँ। कोई डाउट भाई किसी को? हाँ, अभी देखो डाटा मेमोरी में पूरा ब्लैंक है आपके सामने। ओके, कोई डाउट भाई किसी को? चलो अभी मैं असेंबलर का बटन प्रेस करूँ, यानी ये असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। यहाँ पर अब देखो अभी प्रोग्राम आया नहीं है, यहाँ प्रोग्राम लाया जाएगा जब मैं यहाँ पर असेंबलर का बटन प्रेस करूँगा। सी आ गया, कुछ चेंज होगा ना यहाँ पर? देखिए यहाँ पर चेंज हुआ क्योंकि कैसा, सी के ऊपर देखिए आपका मूव 40H
कॉमा ए का कोड आ गया, ओके, और यहाँ पर ई में आ गया, सॉरी डी में आ गया 40H, ओके। इस तरह आपका ये प्रोग्राम मेमोरी में आ गया। चलो अभी डाटा मेमोरी को यहाँ पर क्लिक कर दे। तो डाटा मेमोरी में देखो फिलहाल कुछ है क्या, नहीं है। अभी मैं यहाँ प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ एक एक करके स्टेप्स के द्वारा, हाँ, स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूँ सिंगल स्टेपिंग मोड में, हाँ। सो दैट्स वाई पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव 30H, #20H। तो इसके द्वारा क्या होगा, 20H यह डाटा 30H में कॉपी हो जाएगा, यहाँ कॉपी होगा, यहाँ 00 है फिलहाल। जैसे मैं यहाँ बटन प्रेस करूंगा, देखिए मैंने प्रेस किया तो वहाँ वैल्यू क्या आ गया 20। और कोई रजिस्टर अगर ऑब्जर्व करना है तो वो भी देख लो, ऑब्जर्व कर लो, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, A 0 है, B 0 है, सब जगह 00 ही है। कोई डाउट भी किसी को? अब देखो 31 में है क्या कुछ, वहाँ पर वैल्यू आप रीड कर सकते हो 00 है, लेकिन मैं 31 में अभी क्या फिलहाल इंस्ट्रक्शन क्या लिए हैं, मूव 31H, 10H। जैसे ही मैं स्टेप का बटन प्रेस करूंगा तो वहाँ 31H में वैल्यू आ जाएगी 10H। आ गई? कोई डाउट किसी को? सिमिलरली मूव R0, #30H। अभी R0 देखिए, ये R0 इधर है, R0, हाँ, 8051 के ऊपर है, हाँ, ये देखो माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ पर, हाँ। सो दैट्स वाई R0 यहाँ पर है, उसकी वैल्यू है 00, R1 की वैल्यू है 00, और एंड सो ऑन R7 तक यहाँ पर वैल्यू है 00। ओके, कोई डाउट भी किसी को? अभी देखिए R0 का वाला इंस्ट्रक्शन मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, क्या होगा, R0 में कितना एड्रेस आएगा, 30H। ओके, जैसे ही मैं स्टेप का बटन प्रेस करूंगा तो वहाँ R0 में वैल्यू आ जाएगी 30H। ओके, और वो देखिए आपको वहाँ मेमोरी में, डाटा मेमोरी में भी ऑब्जर्वेबल होगा 30। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है, ये 000, ये जो है डाटा मेमोरी में इट इंडिकेट अ बैंक रजिस्टर। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में बताया था कि आप 00H ऑनवर्ड अप टू 2F, 00 ऑनवर्ड अप टू 2F आप ये मेमोरी का, डाटा मेमोरी का एड्रेस यूज नहीं करना। 30 ऑनवर्ड 7FH तक ही आप यहाँ प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। अर्लियर एड्रेस अगर यूज करोगे तो आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन दी है, उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपका कौन सा डाटा वहां पर रखा जा रहा है, उसके द्वारा आपका प्री डिफाइंड डाटा डिलीट होने के चांसेस रह जाते हैं। इस वजह से हम वहां पर आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भाई 00S से लेकर 2FH का एड्रेस कभी यूज नहीं करना। यूजर के लिए 30 से लेकर 7FH का ही एड्रेस आपको प्रोवाइड किया गया है। Okay, got it everyone? Now I am pressing next one button for execution of next one instruction. कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, मूव R1, #31, यानी 31 यह कहाँ आएगा, R1 रजिस्टर में। सो दैट्स वाई देखिए आ गया क्या 31 R1 रजिस्टर में। ओके, नाउ व्हाट इंस्ट्रक्शन आई वुड लाइक टू एग्जीक्यूट, मूव A, @R0। What happen with the help of this instruction? See, I am telling you here. Now see what is the content present in A. Now nothing is present in A. Okay, its value is 0. So that's why if I execute this instruction, what happen? R0 carries 30. 30 is a memory address. Its data is 20. That data is copied in accumulator. See how I am just pressing the button. See. Got it? A now carries 20H. Okay, the value of address 30H is now copied from that place to accumulator. Okay, at both place you will able to see the value. ऐसा नहीं कि भाई मेमोरी से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो सोर्स है, सोर्स का वैल्यू कॉपी होता है, वहाँ डेस्टिनेशन की वैल्यू इरेज होती है। यानी एक्यूमुलेटर में 00 था, 00 इरेज हो गया, उसकी जगह नई वैल्यू 20H आ गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने जाते हैं, ऐड A, @R1। व्हाट विल हैपन व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन? सी, आई एम जस्ट टेलिंग द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। Add is used for doing the addition. A is a destination as well as a
second data holder register. Its work is to hold a second data, and at the rate r1 means r1 carries 31 and at the rate r1 means its value is 10. So that's why the value of a and 10h both are get added, and result is available in a register, right? So see what is the content in a register. Now presently there is a 20. If I press step button, what will happen? See, tell me. Now a carries 30h, means what it did? It did the addition between 20 and 10. You will get a result in accumulator. Now it is 30h. Now the pointer program counter is pointing over C, so that's why the A register data is get copied in 40h. So that's why I'm writing a instruction move 40h comma A. As I press step, you will see 30 will be copied from accumulator to 40h. See the mouse pointer just where I am rotating over that 40h. Got it? Now this is about the program. Okay, this is a indirect way of data transfer as well as addition. ओके अभी मैं यहाँ पर मैनुअल में लेकर जा रहा हूँ. आपको फिफ्थ प्रोग्राम रहेगा सबट्रैक्शन का. आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन क्या चेंज करनी है? SUBP. ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है? MUL नाम की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लेनी है. ओके, सो दैट्स वाई आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लोगे MUL A, B. ओके, या A, B. Okay, so that's why this instruction is needed. Okay, what is the purpose of this instruction? The purpose of this MULAB to do multiplication. Okay, to do multiplication. Okay, between A and B. Okay, and result is held by A, right? So that's why this instruction is used. Now what I am giving idea, you use the concept fundamental of earlier 4 program for doing the program in immediate, register, direct and indirect addressing mode. Okay, similarly here I am telling you here one instruction. Okay, what is the here? Okay, right. Okay, similarly division, for division's point of view, here I am just copying that instruction. Okay, and for MUL point of view, here a div name instruction is used, right? So that's why here, okay, I just change the instruction div. Okay, it do the division between A and B. Right? So this is about the first program. Okay, I hope you go through this first program and execute it. Okay, you will get an idea how to execute our program using immediate, register, direct and indirect addressing mode. In case if you find any problem, you ask me, no problem. Okay, thank you very much. This is about the first experiment. Okay.